اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہے، اور نیگیٹو سوچ اس کو آگے بڑھنے کیسا دے گی؟ یعنی مثبت رہو، کامیابی پاؤ. ایک اسٹوڈنٹ تھا ایس ایس سی کا 10th کا، اس کے گھر کے حالات اتنے بہتر نہیں تھے، یعنی کہ شاید ٹیوشن فیس بھی پے کرنے کی اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی. تو جس ٹیوشن میں وہ پڑھتا تھا نا، وہ ٹیوشن ٹیچر تھوڑے ماشاءاللہ اچھی سوچ تھی ان کی، تھوڑا اچھا ذہن تھا. انہوں نے اس کی غریبی کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے کہ چلے اس کو پڑھا لیتے ہیں، ٹیوشن میں ایڈمیشن کروا دیا. اب یہ جو تھا نا، تھا تو اچھا، اس کا دماغ بھی اچھا، بہت شارپ مائنڈیڈ تھا، پڑھنے میں بھی اچھا، لیکن اس کی ایک سوچ بنی ہوئی تھی. وہ سوچ کیا بنی ہوئی تھی؟ وہ تھا بڑا شرارتی. تو اس نے کسی کو، اب چھوٹ پن تھا اس کا، ظاہر ہے کہ اس میں اتنی سوچ عقل ہوتی نہیں ہے انسان کو. تو اس نے اسے نا کسی نے کچھ بدوا دیا تھا کہ تو کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اس کو وہ بات ایسی دل پر چوٹ لگی، اور ظاہر ہے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. اب وہی سوچ کر نا وہ پڑھائی میں انٹرسٹ ہی نہ لے. اور پتا ہے میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. سوچ بنا لی تھی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ختم، بس یہ تو یوں ہی پڑھ رہا ہوں، گھر والے پڑھا رہے تھے. ایک دن اس کی جو ٹیچر جو اس کو پڑھاتے تھے، اس کے استاد، اس نے اسے اکیلے میں بلایا اپنی کلاسز ختم ہونے کے بعد کہ بیٹا بعد میں آؤ اور ملاقات کرے مجھ سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے، آپ اس طرح کا کیوں ایک دم، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ میں کچھ، اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے تھے وہ. تو بلائے اور بات کی کہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ یوں مجھے نا کسی نے بدوا دی تھی کہ تو زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ چیز میرے دماغ میں بس گئی. اب یہی سوچ کے نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ میں کچھ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں کامیاب ہونا ہی نہیں ہوں. اب وہ استاد جو تھے نا، وہ تھے ماشاءاللہ مدینہ. انہوں نے کیا کیا، اس کو سمجھایا. دراصل ایسا ہے کہ وہ آپ کا بچپنا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو عقل تھی نہیں، آپ کو اس وقت سمجھ پڑتی نہیں تھی، ہے نا، آپ تو سنے بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے. تو آپ کو تو یہ بدوا اثر ہی نہیں کرنی ہے. اور کچھ بتائے کہ اس طرح بدوا کس کی لگتی ہے، آپ یوں کریں کہ آپ جو ہے وہ نمازوں کی طرف آ جائے، اجتماعات کی طرف آ جائے، نیک کاموں کی طرف آئے، دعا کرے، اللہ پاک سے دعا کرنے میں بڑی برکتیں ملتی ہے. اس طرح سے نا انہوں نے ذہن بنایا. الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹ نے آگے جا کر بہت ترقی کی. اور میں جانتا ہوں ابھی اس کو کہ وہ بھی ابھی ایک ٹیچر بن چکا ہے. سبحان اللہ. اور اس نے اپنے دماغ سے نا وہ نیگیٹو تھنکنگ اب نکال دی. اس کے استاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، میں تجھے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، ختم. وہ ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھائے، اس کی تھنکنگ جو نیگیٹو تھی اس کو پازیٹو کیا. الحمدللہ آج وہ ترقی یافتہ بن گئی. تو یہ دیکھیں، ایک سوچ چھوٹی ہوتی ہے لیکن کتنی زندگیاں برباد کر دیتی ہے. ہمیں آگے بڑھنے میں، ہماری ترقی میں یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی تھنکنگ جو ہے نا وہ پازیٹو رکھنی ہے. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، اتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، ہاں میں کر سکتا ہوں. کیوں کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. I can do this، میں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے؟ اللہ پاک نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے. ہم سے بڑا اور دماغ والا ہو کون سکتا ہے نا؟ اور کمپیوٹر چلاتا انسان ہے، اگر چلا ہی نہیں تو کمپیوٹر کیا کام کر کے دے ہم کو؟ انسان کے پاس یہ جو دماغ ہے نا، یہ سوچ ہے، اس میں اتنا پاور ہے کہ کیا کر سکتا ہے. اب اس میں اصل میں باتیں بہت ہے اس طرح کی، چونکہ تھوڑا سا اس پر ہے الحمدللہ، تو اس طرف نہیں جاتے ہوئے تھوڑا سا بیان کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بیان بھی اسی طرح کا ہے. انشاءاللہ آگے مزید اور باتیں آئیں گی. پیارے اسلامی بھائیوں، مایوسی جو ہے نا، مایوس ہو جانا اپنے آپ سے، یہ ایک مرض ہے. ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے ہمیشہ اچھی امید لگانی چاہیے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں. سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी में क्या फरमाया गया है कि मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूं, बस गुमान करने वाला जैसा जो चाहे गुमान करे। यानी कि जो बंदा गुमान करता है ना, अल्लाह पाक उस गुमान के करीब होता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यहां अब्द से मुराद बंदे मोमिन है, यानी बंदा मेरे मुतालिक जैसा यकीन रखेगा मैं वैसा ही मामला उससे करूंगा। बंदा जैसा अल्लाह पर यकीन रखे, जैसा रखे, अल्लाह पाक उसके साथ वैसा ही होता है। जो सोचे मेरा अच्छा हो ही नहीं सकता, उसका अच्छा होगा ही नहीं। जो ये सोचे मैं ये कर नहीं सकता, उसका हो ही नहीं सकता। और जो ठान ले कि हाँ मैं कर गुजरूंगा, वो कर गुजरता है। इस तरह की बातें ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने बगदाद शरीफ में निगरानी शुरा से बहुत सीखी। कुर्बान यार निगरानी शुरा पर और अपनी सोच पर कुर्बान। बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़ा जिगरा है निगरानी शुरा का, और बहुत बड़ी सोच है निगरानी शुरा की। मतलब हम देखे यार तो खड़े खड़े एक पार्टी से, मतलब हम वो सोच रहे थे कि ये कुछ दावत इस्लामी को इतने यूनिट दे देंगे, इतना अमाउंट दे देंगे, वहां तो सीधा जगह निकाल ली उनसे। उनकी सोच डायरेक्ट जगह पर थी कि ये जगह हमको चाहिए, आपको देना है, आप दे सकते हैं। और वहां कौन मना करे? इतनी बड़ी बारगाह में मना कौन करे? निगरानी शुरा को मना कर ले, हो ही नहीं सकता। और इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह कई बातें वहां पर सीखने को मिली। मालूम हुआ हम जैसा सोचेंगे वैसे ही नताइज हमें मिलेंगे। मुस्बत सोचे मुस्बत नताइज मिलते रहेंगे, मनफी सोचे नेगेटिव सोचे तो मनफी नताइज मिलते जाएंगे। लिहाजा हमेशा अल्लाह पाक की रहमत से अच्छी उम्मीद ही लगाइए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही गुमान रखिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने विसाले ज़ाहिरी से 3 दिन पहले नसीहत करते हुए फरमाया, तुम में से किसी को मौत ना आएगी मगर ये कि वो अल्लाह पाक से नेक गुमान रखता हो। देखिए हम अपनी मौत का वक्त नहीं जानते, हो सकता है अभी मौत आ जाए, हो सकता है कल आए, और हो सकता है कि अभी कई साल जिंदगी बाकी रहे। अलगरज हमें अपनी मौत का वक्त नहीं पता, और हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है कि मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह पाक से नेक गुमान रखते हो। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी बात आका ने फरमाई कि मौत आए तो इस हालत में आए कि हमारा गुमान हमारे रब से अच्छा हो। सुभान अल्लाह। इसका नतीजा भला क्या निकलेगा? यही कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह पाक से नेक गुमान ही रखो। यानी कि मौत का तो कोई वक्त नहीं ना, इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखे। जब मौत आएंगी इंशाअल्लाह तो रब से अच्छा गुमान रखते हुए आएंगे। एक रिवायत में है, रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को मौत ना आए मगर ये कि वो अल्लाह पाक से नेक गुमान रखता हो। फिर फरमाया, एक कौम थी जिसे अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखने ने हलाक कर दिया। यानी कि बुरा गुमान उन्होंने रखा तो वो हलाक कर दिए गए। अल्लाह पाक ने उन्हें फरमाया, तर्जमा कंजुल इरफान, और ये तुम्हारा वो गुमान था जो तुमने अपने रब पर किया, उसी गुमान ने तुम्हें हलाक कर दिया, तो अब नुकसान उठाने वालों में से हो गए। तफसीर सिरातुल जिनान में है, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के बारे में बुरा गुमान रखना गैर मजहबों का तरीका है, और बुरा गुमान रखने वाला उन लोगों में से होगा जो हलाक होने वाले और नुकसान उठाने वाले। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी भी काम में कामयाबी के लिए कुरान करीम ने हमें जो तालीम दी है वो ये है, जिसका तर्जमा मैं अर्ज करता हूं, और कामों में उनसे मशवरा लेते रहो, फिर जब किसी बात का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो,
بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے, جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. اور جس سے رب محبت فرمائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا ہمیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اگر کامیابی چاہیے تو یہ چند کام ضرور کریں. وہ کیا ہے؟ اس کام کے ماہرین یعنی فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کر لیں, یعنی کہ جو ماہر ہوں گے ان سے مشورہ کر لیں. پھر جب مشورہ کر کے کام کرنے کا طے ہو جائے تو پختہ عزم کر لے. اب مشورہ ہو گیا, اب پختہ عزم کر لے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے. تیسرا, اور اللہ پاک پر توکل رکھے, رب پر بھروسہ رکھے. یہ 3 کام کرے. پہلا کیا؟ پہلے تو اس کے ماہرین ایکسپرٹ سے پوچھے کہ یہ کرنا کس طرح. اب جب سیکھ گئے تو پختہ ارادہ بنا لے کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور آگے بڑھ جائے, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. حضرت عبداللہ بن داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا توکل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا نام توکل ہے. معلوم ہوا کامیابی کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ ہم کوئی بھی نیک یا جائز کام کرنے جا رہے ہیں, اس کا کام سے متعلق اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے, اچھا گمان اور یقین رکھے, مثبت سوچ اپنائے, تو انشاءاللہ ہمارے کام میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے یہاں عموماً لوگ مایوسی والی منفی باتیں کرتے ہیں, یا خود مایوس ہوتے ہیں, یا اپنی منفی باتوں کے ذریعے دوسروں کو مایوس کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, پھر وہی سوچ دوسروں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں, اس کو بھی مایوس کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا تجھے کبھی عقل نہیں آئے گی, اس میں وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جن کی زبان بہت چلتی ہے, مطلب سب کو کاٹتے ہوئے نکل جاتی ہے نا, کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا, کسی کو بھی ڈپریشن کا شکار کر دینا, مایوس کر دینا. اچھا خاصا بندہ ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, اس کو اس طرح کی باتیں کریں گے, یار تو کر ہی نہیں سکتا, تیرے میں ہی نہیں وہ صلاحیت, جا تو گھر پہ بیٹھ جا, نہیں کر سکتا. یہ سوچ, یہ ایسی سوچ بندے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. تو یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں. تجھے کبھی عقل آئے گی نہیں, تجھے کبھی عقل آئے گی نہیں. آپ جانتے ہو اگر کوئی کم عقل بندہ ہے نا, اگر واقعی اس کی عقل اتنی نہیں ہے, اگر آپ نے اسے یہ جملہ بولا نا, وہ اور زیادہ پاگل ہوتا چلا جائے. اور اگر آپ نے اس کے دماغ میں بات ڈال دیا نا, تیرے اندر بہت عقل ہے یار, بہت عقل مند ہے, تو بہت کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں وہ یہ سوچ, یہ بات آپ کی اچھی بات اسے اچھا بنا دے. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ تو پاگل ہے, وہ بندہ پاگل ہی ہوتا چلا جائے گا, اور وہ پاگل ہی رہے گا ہمیشہ. اسی لیے اچھا بولنا سیکھے, اچھی بات کرے, کسی کی بھی پیٹھ تھپتھپائے, اس کو جو ہے حوصلہ دے, اس کی حوصلہ افزائی کرے. ایک دوسروں کو مایوس, یعنی کہ تم ہمیشہ ناکامی رہو گے, ترقی نہیں کر سکتے, تم کوئی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے, تمہاری قسمت میں ذلت ہی لکھی ہے, تم ساری زندگی نکمے ہی رہو گے. عموماً والدین اپنی اولاد کو ایسی باتیں سنایا کرتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ پاک کے رحمت سے اچھی امید رکھیے. کیا بے عقل کو عقل مند کر دینا اللہ پاک کی قدرت میں نہیں ہے یا نہیں؟ اگر جو بے عقل ہے اس کو عقل والا بنا دینا, یہ میرے رب کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا کسی نکمے کو کامیابی دے دینا اللہ پاک کے اختیار میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ہم کسی کا مستقبل جانتے ہیں؟ آج جو ہمیں نکما اور کم عقل کن ذہن نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کل اس کی قسمت چمکے, اللہ پاک اسے عقل مند, بڑا عالم, فاضل, صاحب حکمت, عبادت گزار, نیک پرہیزگار, با کردار اور زمانے کا لیڈر
लगता है। आप जानते हो एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत ने मद्दी मुज़ाकरे में फरमाया था कि जब मैं छोटा था ना तो मुझे किसी ने मस्जिद से झिड़क कर बाहर कर दिया था, झिड़क कर कि चल यहां से निकल। और आपने जब बयान और इस तरह के आप जब कलाम पढ़ते थे ना तो लोग आपको बुरा कहते थे और इस तरह कहते थे कि चल निकल यहां से। लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। और आज देखे वो मर्दे कलंदर लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, क्योंकि आपने ठान लिया था, आपने सोच लिया था कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है। और आपकी सोच ने वो काम कर दिखाई कि आज ये दावत इस्लामी आपके सामने। ये अच्छी सोच की बरकत होती है। पता नहीं ना हमें कौन सा बंदा अल्लाह पाक कब करम कर दे और उसका काम हो जाए। अब आइए वाकया सुने, बड़ा प्यारा वाकया। अल्लामा सादुद्दीन मसऊद बिन उमर तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत बड़े आलिम दीन है। दरसे निजामी यानी आलिम कोर्स में आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती है। इतने बड़े आलिम है कि आलिम कोर्स में इनकी किताबें पढ़ाई जाती है। अब आइए इनका वाकया सुनते हैं। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काजी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पढ़ा करते थे और क्लास में ये सबसे ज्यादा कुंद जहन समझे जाते थे, यानी कि इनका दिमाग ही नहीं चलता था, एकदम कुंद जहन थे ये। आपके हम मकतब यानी कि जो क्लास फेलो होते हैं ना, आपकी कुंद जहनी यानी कमजोर याददाश्त की वजह से आपका मजाक उड़ाया करते थे। सारे आपके क्लास के जो लोग थे वो उसका मजाक उड़ाते थे कि बहुत कुंद जहन है, वो पढ़ता ही नहीं है, कमजोर है, इस तरह से। इसके बावजूद अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते ही रहे। बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ सबक याद करते, फिर भूल जाते, फिर याद करते, यूं आपने मेहनत जारी रखी। एक मर्तबा क्या हुआ, एक मर्तबा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबक याद करने में मसरूफ थे कि एक अजनबी शख्स आया और कहा, मसऊद उठो हम सैर करने चलते। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाबन कहा, मुझे सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं किया गया, वैसे भी मैं इतना पढ़ने के बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर मैं सैर व तफरीह में वक्त कैसे बर्बाद कर सकता हूं। यह सुनकर वो अजनबी शख्स चला गया। कुछ देर बाद फिर वही शख्स आया, उसने फिर आपको सैर व तफरीह के लिए चलने की दावत दी, आपने फिर वही जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद तीसरी बार वही शख्स आया, अब की बार उसने कहा, आपको अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुंद जहन थे, दिमाग नहीं था, अक्ल नहीं थी, दिमाग चलता नहीं था, कर्म कैसा हुआ, नबी पाक याद फरमा रहे। सुभान अल्लाह। आका तुम्हें याद फरमा रहे हैं। बस ये सुनना था कि अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बदन पर कब कपी तारी हो गई और आप नंगे पांव ही दीदारे महबूब के लिए दौड़ पड़े। नंगे पांव दौड़ पड़े महबूब के दीदार के लिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अब जब नंगे पांव दीदार के लिए दौड़ पड़े तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे जलवा फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, हमारे बार बार बुलाने पर आप क्यों नहीं आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम नहीं था कि आप याद फरमा रहे हैं। आप तो मेरी कुंद जहनी को जानते हैं ना आका, मैं कितना कुंद जहन हूं, आप तो जानते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी पाक बारगाह में शिफा का तलबगार हूं। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फरियाद सुनकर दरियाए रहमत जोश में आ गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो कोई हो जो आह करे दिल से। आका को पुकारा, आका ने करम नवाजी फरमाई।
या रसूल अल्लाह, मैं आपकी पाक बारगाह में शिफा का तलबगार हूँ। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फरियाद सुनकर दरिया रहमत जोश में आया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आए है नबी पाक ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने मुंह खोला तो सरकार आली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक आए है यानी अपना बरकत वाला थूक आपके मुंह में डाल दिया और दुआ भी फरमाई। इसकी बरकत से अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुंद ज़हनी यानी याददाश्त की कमजोरी से नजात मिली और आप बहुत बड़े आलिम दीन बन गए। सुभान अल्लाह। कुंद ज़हन थे, याद नहीं होता था, लोग नाम रखते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब करम होता है तो कैसा होता है। आज हम अगर किसी को कमजोर कह रहे हैं ना, अगर उस पर भी करम हो गया ना, तो सोचे कि हम जो बोलते थे और वो बंदा जब बड़े लेवल पर पहुंच गया, हम क्या करेंगे। इसीलिए किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए कि कमजोर कोई नहीं। अगर जिसके साथ अल्लाह पाक की रहमत हो जाए, नबी पाक का करम हो जाए, सबसे ताकतवर वो हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये जहन रखे कि हम सबके साथ अच्छा बिहेव करने वाले बन जाए। ये करम नवाजी है। बहरहाल हम किसी के मुस्तकबिल पर हुक्म नहीं लगा सकते, ना ही लगाना चाहिए। आज जो हमें नाकाम, निकम्मा, कुंद ज़हन, सुस्त नजर आ रहा है, कल को उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह पाक की उस पर क्या क्या करम नवाजियां हो सकती है, हम नहीं जानते। लिहाजा किसी के बारे में भी अपना मनफी जहन हरगिज़ मत बनाइए, ना ही किसी के मुस्तकबिल पर मनफी हुक्म लगाइए, बल्कि हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की रहमत से अच्छी ही उम्मीद लगाए और ये जहन रखे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शागिर्द आज निकम्मा नाकारा है तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रहमत फरमाएगा तो अपने करम से उसे कामयाबी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ के मामले में भी मुस्बत ही रहना चाहिए। दुआ मांगते हैं ना, इसमें भी मुस्बत सोच रखें। हमारे बुजुर्गाने दीन की बड़ी प्यारी सोच होती थी। ये नेक लोग दूसरों को बदुआ देने की बजाय अच्छी अच्छी दुआएं दिया करते थे। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, किसी को बदुआ नहीं देते थे, अच्छी अच्छी दुआएं दिया करते थे। और आप जानते, जो बंदा किसी और के लिए दुआ करता है ना, पहले वो दुआ उसके खुद हक में कबूल होती है। इसीलिए सबको दुआएं देते रहिए। हो सकता है कि पहले आपके हक में कबूल हो जाए। एक शख्स को मैं जानता हूं, वो सबको हज की दुआ देते थे, अल्लाह आपको हजी बनाए, अल्लाह आपको हजी बनाए। अब वो बंदे के पास असबाब नहीं थे, लेकिन वो जितनों को याद है, जिसको दुआ दी ना, वो सबसे पहले हज को वही गए जो दुआ देते थे। सुभान अल्लाह। तो दुआ देते रहे, क्या जाता है यार, बंदे का दिल खुश हो जाएगा। और अल्लाह पाक की रहमत से अगर वो दुआ हमारे हक में कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज से सबको दुआ देते रहो, अल्लाह आपको हजी बनाए, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, इंशाअल्लाह ऐसी दुआ देते रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं। एक मर्तबा आप अपने मुरीदों के साथ किश्ती में सफर फरमा रहे थे, सामने से एक किश्ती आती हुई दिखाई दी। उस किश्ती में सवार लोग गाने बजा रहे थे और दरिया में एक हंगामा उठा रखा था। हजरत जुन्नून मिस्री के मुरीदों ने अर्ज किया, अली जा दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन सब को गर्क कर दे ताकि इनकी नहुसत से मखलूक खुदा पाक हो जाए। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए और हाथ उठाकर यूं दुआ मांगी, ए अल्लाह पाक, तूने जिस तरह इन्हें इस दुनिया में खुशियां अता फरमाई है, यानी कि वो खुशियों के लिए बजा रहे थे ना, यानी कि जो भी धमाका कर रहे थे ये खुशी के लिए कर रहे थे, तो आपने क्या दुआ फरमाई, या अल्लाह पाक, तूने जिस तरह इन्हें इस दुनिया में खुशियां अता फरमाई है, ऐसे ही
आखिरत में भी इन्हें खुशियां अता फरमा। है क्या प्यारा अंदाज कि जिस तरह दुनिया में खुशी अता फरमाई है, आखिरत में भी इन्हें खुशी अता फरमा। आपकी ये दुआ सुनकर मुरीदों को बड़ी हैरानी हुई। खैर, जब वो किश्ती करीब आई, जैसे ही उन लोगों की नजरें हजरत जुन्नुन मिस्री पर पड़ी तो सब रोने लगे। उन्होंने मौसीकी के आलात तोड़े और सच्ची तौबा करके नेक रास्ते के मुसाफिर बन गए। इस पर हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदों को फरमाया, आखिरत की खुशियां इस जहां यानी दुनिया में तौबा करने के जरिए ही तो हासिल होती है। क्या प्यारी बात करेंगे कि उन्हें आखिरत की खुशियां कब मिलेंगी? जब वो दुनिया के गुनाहों से तौबा करेंगे। इसका मतलब क्या कि आपने दुआ वही की कि ये जो गुनाह ये कर रहे हैं वो ये गुनाह छोड़ दे, लेकिन तरीका कितना अच्छा था। काश कि हमें तरीका आ जाए, मांगने का तरीका आ जाए, और जिसे मांगना आ गया ना, जिसे मांगना आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। एक शख्स थे, वो रोज़ा रसूल पर खड़े होकर दुआ कर रहे थे, और दुआ क्या कर रहे थे पता है? अल्लाह, मैं जानता हूं कि अगर तूने मेरे गुनाहों के सबब मुझे जहन्नम में डाल दिया ना, तो शैतान खुश होगा और तेरे महबूब ना खुश होंगे। और हे मौला, मैं तुझसे ये गुमान कैसे रख सकता हूं कि तू शैतान को खुश करेगा और अपने महबूब को नाराज करेगा? ये मैं कैसे तुझसे गुमान रख सकता हूं? ये अर्ज करना था कि दरिया रहमत जोश में आई, गैब से आवाज आई, ए बंदे, तेरे मांगने का तरीका मुझे इतना पसंद आया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। क्या अंदाज था ना मांगने का। काश के हमें भी मांगना आ जाए, और मांगे तो ऐसा मांगे ना कि हमेशा अल्लाह की जात पर यकीन। अगर हमें कोई वजीफा बताएगा ना कि आपका कारोबार ठप पड़ गया ना, फजर की नमाज के बाद ये पढ़े, हम वो वजीफा तो करते हैं, लेकिन दिल में ये होता है होगा या नहीं, चलो कर लेते, देख के हो गया तो ठीक, ये तो फजर तो मिल रही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, फजर तो पढ़ना ही है, फजर तो वहां वही नहीं। लेकिन ये जो ख्याल है ना, ये दो कश्ती के मुसाफिर, डगमग वाला, जो जिनके पैर दो कश्ती में हो गए ना, वो गिर जाएंगे, एक कश्ती में हो जाए। हाँ, यकीन है इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी दुआओं को जरूर कबूल फरमाए। ये यकीन है कामिल के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होगी। और अपनी सोच को मुस्बत बनाए, पॉजिटिव बनाए, अच्छी सोच बनाए, हर एक के लिए अच्छा सोचे, हर मुसलमान के लिए अच्छा सोचे, अपने भाई के लिए अच्छा सोचे, अपने घर वालों के लिए अच्छा सोचे, अपने दोस्त के लिए अच्छा सोचे, अपने मातहत के लिए अच्छा सोचे, अपने निगरान के लिए अच्छा सोचे, हर जिम्मेदार के लिए अच्छा सोचे। ये सोच बन गई, इंशाअल्लाह खुशहाली हमारे यहाँ हो जाएगी। आपको एक बताऊं, निगरान शुरा ने एक वाकया बयान किया था, मैंने उसे मदनी चैनल पर देखा था कि निगरान शुरा ने फरमाया, एक उस्ताद थे, उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा, मेरे पास अगर एक सेब है, उसमें मैं एक सेब और ऐड कर दूं, फिर उसमें एक और ऐड करूं, तो कितने हो गए? तो वो शागिर्द ने, स्टूडेंट ने कहा कि उस्ताद साहब 4 सेब हो गए। उस्ताद ने कहा, बेटा गौर से सुनो, मेरे पास एक सेब था, मैंने उसमें एक और ऐड किया, फिर उसमें एक और ऐड किया, कितने हो गए? कहा उस्ताद साहब 4 हो गए। उस्ताद साहब हैरान, यार मैं इतना खुल के इतने अच्छे से बता रहा हूं, फिर भी ये 4 बोल रहा है। उस्ताद ने कहा कि चलो फ्रूट चेंज करते हैं। फ्रूट आपने चेंज किया, अब दूसरा फ्रूट कहा कि मेरे पास ये फल एक है, मैंने उसमें दूसरा ऐड किया, उसमें मैंने तीसरा ऐड किया, कितने हो गए? तो स्टूडेंट ने कहा उस्ताद साहब 3 हो गए। अब उस्ताद को लगा, अब इसका ज़हन आ गया सही, अब वापस सेब पर आता। फिर उस्ताद ने कहा कि बेटा मेरे पास एक सेब, उसमें दूसरा ऐड किया, उसमें तीसरा, कितने हो गए? स्टूडेंट ने फिर कहा हजरत 4 हो गए उस्ताद साहब। अब वो उस्ताद परेशान, लेकिन उनकी सोच अच्छी थी, उस्ताद है ना, उन्होंने सोचा कुछ तो मसला है, ये बैठकर समझना पड़ेगा, इसके पास जाता हूं, इसके पास बैठता हूं, बेटा ये बोलने की वजह क्या है, ये तो 3 हो रहे, तू 4 क्यों बोल रहा है? अब वो उस्ताद उसके पास गए, बेटा क्या बात है, मैंने आपको एक बताया अभी कि एक, उसमें एक और ऐड किया और एक और ऐड किया, 3 होते हैं, आपने 4 क्यों बार बार कह रहे? और फ्रूट चेंज किया था, बराबर 3 कह रहे हैं।
तो उस बच्चे ने कहा उस्ताद साहब दरअसल बात यह है कि एक सेब मेरे बैग में रखा हुआ है। मस्जिद में खिलखिला कर ना हंसे। एक सेब मेरे बैग में रखा हुआ है, इसलिए मैं 4 कह रहा था, आपने फ्रूट बदला तो मैंने 3 कहा। तो उस्ताद ने क्या किया, अक्लमंदी लगाई ना, बाजू में बैठे समझने की कोशिश की कि बच्चा क्यों गलत बोल रहा है। जब समझे तो आपके समझ आई कि हाँ बच्चा सही था, वो अपनी जगह सही था, उस्ताद भी अपनी जगह सही थे। अगर हम इस तरह की थिंकिंग रखें ना कि अगर किसी ने इस तरह की बात की है, हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो जो वो बता नहीं सकता है आपको, वो बता नहीं सकता, तो आप समझ लें इंशाअल्लाह झगड़े खत्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह झगड़े खत्म, ना इत्तेफाकियां खत्म, और घर में और आपके मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दीनी माहौल में ये इंशाअल्लाह खुशहाली खुशहाली होगी इंशाअल्लाह। ये सोच बनाकर रखे हमेशा, ये थिंकिंग रखे, देखे आपको भी जीने का मजा आएगा और सामने वाले को भी आपके जरिए मजा आएगा आपसे मिलने। और जिसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है ना, उसका फोन उठाने में डर लगता, यकीन माने बहुत डर लगता, यार इसका फोन आया, अब कुछ ना कुछ पंचायत है, अब कुछ ना कुछ मसला है इसके पास। ऐसे लोग को फोन भी नहीं उठाते कोई जल्दी। तो आपको कैसे बनना है, बोले नेगेटिव से या पॉजिटिव? पॉजिटिव वाले कितने हैं? फिर भी कम है, मतलब नेगेटिव वाले अभी भी है, शायद शुरुआत से बयान नहीं सुने होंगे, है ना? सब पॉजिटिव वाले, सब चाहते हैं लोग मेरे से बात करें, मेरे से अपने गम दुख शेयर करें, तो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग वाले बना ले, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कितना यूनिक टॉपिक सुना ना हमने बयान में, ये शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा, है ना? पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये कैसे सुनने मिला आपको? आप यहाँ इज्तिमा में आए तो ना। अगर यही सोच आप नहीं चाहते थे कि मेरा भाई भी इस तरह की सोच और इस तरह का बयान सुने, कि मेरा भाई जो नेगेटिव सोचता है वो भी पॉजिटिव सोचने वाला बन जाए, चाहते हैं ना? तो क्या करेंगे मालूम? अगले हफ्ते से वो भाई को भी लेकर आएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। यार ये दावत इस्लामी में ना हर हफ्ते कुछ ना कोई अच्छा सीखने मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बयान करते हैं लोग, मतलब अपनी भी इस्लाह होती है, और हम अगर वो किसी और को बताए तो उसकी भी इस्लाह होगी। तो आप भी अपनी थिंकिंग बना ले, अपनी सोच बना ले। आज सोच पर बयान सुना ना हमने, है ना? सोच पर बयान सुना ना, तो अब अपनी सोच बना ले कि हर हफ्ते मैं 6 को अपने साथ लाऊंगा। और ये बड़ी बात नहीं है 6 को लाना, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन आप ठान लेंगे ना इंशाअल्लाह आप कर गुजरेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन 6 को लाएगा? इंशाअल्लाह एकदम मजबूती के साथ इंशाअल्लाह सब 6 को लाएंगे तो मस्जिद भर जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? लंगर बढ़ा देंगे सलमान भाई, हाँ इंजमाम भाई बढ़ा देंगे, ठीक है भाई, आपके लिए लंगर भी बढ़ा देंगे। आप लाओ तो सही अवाम, ये पूरा ये कम से कम इतना तो भर दो। अगले हफ्ते हर इस्लामी भाई 6 को लाए, मैं तो बोलता हूँ दिसंबर महीने तक 500 की तादाद हो जाना चाहिए यहाँ पे, और सब मिलकर करेंगे तो होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आइए दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुआ और दुरूद पाक पढ़ते हैं।